हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इन्वायरमेंट मास्टर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरा नाम है ऋषभ सिंह। अभी हम लोग वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं गेट 2021 के इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लिए। इसमें हम लोगों ने वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एज हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, एडिशनल टॉपिक्स में, out of which water demands, its source and its conveyance that has already been covered in my previous videos. If you wanna see, then go back and see the playlist of environmental engineering, in which starting 2-3 videos of the water demands and source and its conveyance is there. After that, we have started the water quality parameters, which is the more important portion which has been asked previously in a GATE exam of civil engineering. Water quality parameter, treatment of water, and here is the characteristics of wastewater and treatment of sewage. ठीक है, these 4 chapters require the more weightage in a GATE exam, as we have seen in a previous pattern of GATE exam for civil engineering. So right now we are covering the water quality parameters, out of which physical water quality parameters, that are the total suspended solids, then turbidity, then color, taste and odor, and temperature has already been covered in my subsequent previous 2 videos. Then after, we have started the water quality parameters, in which we have started the chemical water quality parameter. So here are the basically 9 chemical water quality parameters are there. First one is the total dissolved solids, then second one is alkalinity, then hardness, then pH, then chloride content, then nitrogen content, then phosphorus, fluorides, and metals. Metals are divided into 2 parts, then the normal जो heavy metals हैं, ठीक है, and some other metals which is not the heavy metals, but they are found in a, some are found in a major quantity and some are found in a minor quantity. So let's start with the total dissolved solids. Then we have covered the we will cover the alkalinity in this video itself. So in the first location, then the chemical water quality parameters. ठीक है, in a chemical water quality parameter, water is called the universal solvent. Actually जो water होता है उसकी एक solvent characteristics होती है which can dissolve the impurities as well as the organic and inorganic solids through its in it, because that is called the solvent characteristics of water. ठीक है, so water is called the universal solvent and chemical parameters are related to the solvent capability of water. So what are the different chemical parameters? So as we have discussed previously, that the total dissolved solids, alkalinity, hardness, pH. ठीक है, then start the total dissolved solids, so TDS. Right now we have made two diagrams in which there is a beaker, conical flask. देखिए, in conical flask there is a filter paper. We will pass the V volume of water from top. ठीक है, तो some portion of solids will retain on a filter paper and some portion of solids will move in a suspension and pass through the filter paper and retain in a solution which is in the conical flask. So the solids that has been trapped by the filter paper is called the total suspended solids that we have discussed. This is the physical parameters. But the solids which is in a suspension or solution and trapped inside the conical flask, then that is called the chemical parameter, या इसको बोलते हैं हम लोग total dissolved solids. अब what are the methods through which we will find the total dissolved solids? So basically there are 2-3 methods through which we can find the total dissolved solids. So what are these? In a first method we will pass the water through it. ठीक है, then we will put the equal amount of same water in a conical flask and heat up to nearly 105 degrees Celsius, so that the whole water will evaporate. Then the solid still in a conical flask is called the
टोटल सॉलिड्स। ये फिल्टर किया हुआ सॉलिड्स नहीं है, विदाउट फिल्टर्ड वाटर है, ठीक है। इसको जो इवेपोरेशन के बाद जो सॉलिड्स बनेंगे वो टोटल सॉलिड्स हो गए, और जितना नोन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम हमने इसमें पुट किया है, सो कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकलेगा, कितना अमाउंट ऑफ सॉलिड्स इवेपोरेशन के बाद में इसके स्केलिंग के लिए बचा हुआ है, देन डिवाइडेड बाई द वॉल्यूम ऑफ वाटर पोर इन अ कोनिकल फ्लास्क, ठीक है। दिस इज द टोटल सॉलिड्स। देन we have found the suspended solids through the weight difference between the filter paper with solids and minus the filter paper without solid divided by the known volume of water pour, so उससे हमको suspended solids पता चल जाएगा। so after that total dissolved solids निकालने के लिए एक indirect method, total dissolved solids निकालने के लिए total solids minus total suspended solids, इन दोनों का difference कर देंगे तो हमको total dissolved solids मिल जाएंगे। फर्स्ट मेथड तो ये है। सेकेंड मेथड क्या है, वी विल आफ्टर जब ये फिल्टर पेपर से वॉल्यूम पास हो जाएगा तो इस फिल्टर पेपर को रिमूव कर देंगे, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ पर होगा सस्पेंशन में इसको इवेपोरेट करा देंगे। आफ्टर इवेपोरेशन जो इसमें सॉलिड्स बचेंगे डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम पोर, ये एक दूसरा मेथड है जिससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो यही लिखा हुआ है, डेफिनेशन हमने बता दिया कि टोटल सॉलिड्स प्रेजेंट क्या है, सस्पेंडेड सॉलिड्स क्या होते हैं, ठीक है, देख लीजिए एक बार आप लोग, ठीक है। देन डायरेक्ट मेजरमेंट कैसे करते हैं, डायरेक्ट मेजरमेंट टीडीएस कैन बी डन बाय वेपोराइजिंग टू ड्राइनेस अ सैंपल ऑफ वाटर which has been filtered and weight of solid present to the volume of water passed and remain in a flask represents the concentration of total suspended solids present. Sorry, here is a total dissolved solids present. Sorry, not the suspended solid, there is a total dissolved solids, ठीक है। ये टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स है टीडीएस, ओके, देयर इज अ टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, ओके। सो आफ्टर दैट एक थर्ड मेथड है जिसको अप्रोक्सीमेट एनालिसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेजर कर लेते हैं। सो एबिलिटी ऑफ वाटर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, दैट इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, देयर इज अ सम अमाउंट ऑफ आयंस इन अ वाटर। सो जब आयंस रहेंगे उस आयंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन अ वाटर होगा। सो ये अप्रोक्सीमेट एनालिसिस इस तरीके से करते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मिलीमो पर सेंटीमीटर, ये इसकी यूनिट है, मिलीमो पर सेंटीमीटर या सीमेंस में भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको मेजर हम लोग करते हैं डाई आयनिक टेस्टर से। जब हम लोगों ने देखा होगा घरों में जब कभी भी कोई भी मतलब आरओ वगैरह को जब मेजरमेंट करने आता है तो उसमें एक इंस्ट्रूमेंट लगाता है वाटर में जिससे वो टीडीएस निकलता है पीपीएम में। सो दैट इज द डाई आयनिक टेस्टर, ठीक है। तो उसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेजर कर लेते हैं। तो एक रिलेशनशिप होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इतना एट 25 डिग्री सेल्सियस इंटू 0.65 या 65% इज इक्वल टू द डिजॉल्व सॉलिड्स प्रेजेंट इन मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। तो उसके बाद में स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होता है वो फंक्शन ऑफ आयोनिक स्ट्रेंथ होता है। जैसे हमने बताया कि जो आयंस प्रेजेंट होंगे उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड अपॉन द आयंस प्रेजेंट इन अ वाटर, ठीक है। तो मेजरमेंट का क्या मेथड है, कंडक्टिविटी मीटर से मेजर करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है, जो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मिली सीमेंस पर मीटर इसमें मेजर कर लेते हैं। सो अब नाउ द क्वेश्चन आई व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स इन अ वाटर। So there are basically the two sources. First one is a major source and the second one is a minor source. So major sources में क्या होगा, ये सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, यहाँ पे मैग्नीशियम 2+ होगा, ठीक है। देन द HCO3 माइनस, देन सल्फेट, देन क्लोराइड, ठीक है, ये रहेगा। देन माइनर सोर्सेज में आयरन, पोटेशियम, कार्बोनेट, नाइट्रेट, फ्लोराइड, बोरॉन एंड सिलिका, ये रहेगा, ठीक है। तो डिजॉल्व सॉलिड्स इन वाटर रिप्रेजेंट फ्रॉम द सॉल्वेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर, जैसे हमने प्रीवियसली बताया था। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन कौन से रहेंगे, जैसे मिनरल, मेटल्स एंड गैसेस। अब देखिए जो मिनरल्स, मेटल्स और गैसेस है, तो अब ये वाटर में डिजॉल्व किस लोकेशन पे होगा, एटमॉस्फेयर में भी डिजॉल्व हो सकता है। लाइक जब हमारा रेनफॉल हो रहा है, ड्यूरिंग द रेनफॉल जब उसमें पास करेगा तो एटमॉस्फेयर में कुछ एरोसॉल्स वगैरह प्रेजेंट रहते हैं, वो उसमें डिजॉल्व हो सकते हैं। सम अमाउंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेज एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। जब रेनफॉल हो रहा है तो ड्यूरिंग द रेनफॉल, क्योंकि रेनफॉल होने के वक्त में उसका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो रेन ड्रॉप्स होती हैं, तो उसकी डिजॉल्व कैरेक्टरिस्टिक्स भी अधिक होगी तो डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है।
तो ये मेथड से तो वही लिखा है कि वाटर में कम इन कांटेक्ट विद दीज सब्सटेंसेस, मिनरल्स, मेटल्स और गैसेस, जो ये सब्सटेंसेस हैं इनसे आने के लिए जो है इन एयर ऑन अर्थ सरफेस एंड बिलो द अर्थ सरफेस। बिलो अर्थ सरफेस के लिए जब वाटर हमारा अंडरग्राउंड वाटर में जाता है, यानी कि परकोलेट या इन्फिल्ट्रेट होता है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक से मूव करता जाता है। तो जब रॉक से मूव करके जाएगा तो वाटर के अंदर में सॉल्वेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो उस चार्जेस को उस रॉक से ले करके और डिजॉल्व करके लीच आउट करके और ले करके चलाएगा, तो वहां से भी डिजॉल्व सॉलिड्स उसमें आ जाते हैं। अर्थ सरफेस के ऊपर अगर मान लीजिए अर्थ सरफेस के ऊपर कोई भी रॉक्स है, कुछ उसके ऊपर मूव कर रहा है वाटर सरफेस रन ऑफ के थ्रू, तो उसमें भी हमारा डिजॉल्व सॉलिड्स जो है वो वाटर सॉलिड्स जो है उसमें डिजॉल्व हो जाएंगे वाटर में। अब इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट है कि अनडिजायरेबल इन वाटर डिजॉल्व सॉलिड्स को हम लोग अनडिजायरेबल करते हैं। अगर सॉलिड्स प्रेजेंट हैं देन उसके डिजॉल्व सॉलिड्स प्रेजेंट है, तो अल्टीमेटली अगर सॉलिड्स प्रेजेंट है तो वो हार्डनेस वगैरह को इंक्रीज है, हार्डनेस जो है तुम्हारा लैक्सेटिव इफेक्ट और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है करता है। और जो डिफरेंट जो डिजॉल्व सॉलिड्स हैं लाइक द फिनॉल्स अगर उसमें कहीं प्रेजेंट है, तो अगर हैलोजन में अगर वाटर ट्रीटमेंट करते हैं, हैलोजन्स या क्लोराइड्स के क्लोरीन्स के साथ ट्रीटमेंट करते हैं, तो क्लोरोफिनॉल वगैरह बना करके और कार्सिनोजेनिक एजेंट्स बना लेता है, ठीक है। प्रोड्यूसिंग या डिप्रेसिंग कलर, टेस्ट एंड ओडर भी बनाता है, ठीक है। तो दीज आर द इम्पैक्ट्स विद द टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स इन वाटर। अब क्या है, जब हमारा कोई भी वाटर एनालिसिस करते हैं तो ड्यूरिंग दैट वाटर एनालिसिस वी फर्स्ट मेजर द डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ सॉल्ट्स, हैवी मेटल्स, डिफरेंट मेटल्स वगैरह को प्रेजेंट जो है उसको मेजर कर लेते हैं। आफ्टर डूइंग द टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स एनालिसिस, सब एनालिसिस करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप इज द हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द सॉलिड्स प्रेजेंट इन अ वाटर इज एक्यूरेट और नॉट। तो उसको मेजर करने के लिए टोटल अमाउंट्स ऑफ एनायंस एंड टोटल अमाउंट्स ऑफ कैटायंस इन अ वाटर जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए। होना तो इक्वल ही चाहिए, यानी कि जो एरर है वो जीरो होना चाहिए, बट ऑलमोस्ट हम लोग 10% तक परमिसिबल रखते हैं। तो उसके लिए कि द आयंस यूजुअली अकाउंटिंग फॉर द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ टीडीएस इन नेचुरल वाटर आर मेजर एंड माइनर सोर्सेज, ठीक है। तो उसको कॉमन आयंस वगैरह बोलते हैं, ठीक है। अब टेस्टिंग कैसे करते हैं आयन बैलेंस की? आयन बैलेंस की टेस्टिंग के लिए एक हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, उसको देख लीजिए। कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो हमारा कैटायंस हैं, दैट द कैल्शियम है 55 मिलीग्राम पर लीटर, मैग्नीशियम 18 मिलीग्राम पर लीटर एंड सोडियम 98 मिलीग्राम पर लीटर। देन एयर जो बाइकार्बोनेट जो है 250 मिलीग्राम पर लीटर, सल्फेट 60 मिलीग्राम पर लीटर एंड क्लोराइड जो है 89 मिलीग्राम पर लीटर। राइट नाउ ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन किसी दूसरी कॉन्सेंट्रेशन के इक्विवेलेंट नहीं होती है। मतलब हम लोग इन दो को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो इसको कंपेरिजन कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर आते हैं यहाँ पे बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री समझते हैं। केमिस्ट्री का बेसिक क्या है, जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो एटॉमिक वेट, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एटम्स होते हैं वो किसी भी एक मॉलिक्यूल्स में उनके इंडिविजुअल एटॉमिक वेट के सम के इक्वल होता है। देन द इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। वैलेंसी ये है, ठीक है। देन ग्राम इक्विवेलेंट क्या आएगा कि जो वेट इन ग्राम्स हैं डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो यहां से हमारा ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएगा। अब जो ग्राम इक्विवेलेंट है ना, यही वो चीज है जो एक दूसरे से जिसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं बेसिकली। सो कंपैरिजन जो है वो ग्राम इक्विवेलेंट के साथ में कंपैरिजन होता है। एक ग्राम इक्विवेलेंट जो है दूसरे क्वांटिटी के ग्राम इक्विवेलेंट के ऑलवेज इक्वल होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से कंपैरिजन ऐसे करेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन ये दे रखा है, इक्विवेलेंट वेट ये कैल्शियम का कितना होता है 40, 2 वैलेंसी है, ठीक। तो डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 20। मैग्नीशियम का 24.3 डिवाइडेड बाई 2 वैलेंसी, सोडियम का 23 डिवाइडेड बाई 1 वैलेंसी। तो ये हमको इक्विवेलेंट वेट मिल गया, ठीक है। और ये हमको कॉन्सेंट्रेशन है। तो ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेंट्रेशन या ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए 55 डिवाइडेड बाई 20 तो 2.75, इन सारे ग्राम इक्विवेलेंट्स का एक सम कर लेते हैं, ये रहा 8.49। ये हमारे कैटायंस के हैं, ठीक है। अब एनायंस के करने के लिए सेम प्रोसीजर अपनाएंगे। 250 मिलीग्राम पर लीटर दे रखा है, इक्विवेलेंट मिलीग्राम पर मिली इक्विवेलेंट इतना दे रखा है। इससे करके 7.86 हमारे टोटल अमाउंट्स ऑफ एनायंस आ गए। अब एरर के निकालने के लिए एरर इज इक्वल टू 8.49 माइनस 7.86 डिवाइडेड बाई 7.86 इंटू 100%, ठीक है। तो इससे हमको 8% के आसपास एरर मिल गई विच इज विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट। बहुत जगह पे डिफरेंट प्लेसेस पर क्या होता है कि इस जगह पर हम लोग ये मेथड भी यूज करते हैं कहीं कहीं कि परसेंटेज एरर जो है
यहाँ पे हम लोग ये डिनोमिनेटर में 8.49 प्लस 7.86 भी बहुत जगह पे इस तरीके से करते हैं, यानी कि मतलब तो जो मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी कि कैटायंस माइनस एनायंस डिवाइडेड बाय कैटायंस प्लस एनायंस इनटू 100%। सम प्लेसेस पे इसको भी यूज़ किया जाता है मेजरमेंट के लिए, ठीक है। कुछ पॉइंट पे यहाँ पे 7.86 की 7.86 प्लस 7 प्लस 8.49 भी करते हैं, ठीक है। तो ये परसेंटेज एरर यहाँ से निकल जाएगा, तो विद इन द परमिसेबल लिमिट है, तो ओके है। अब ये एक डायग्राम हम लोग बनाते हैं, ठीक है। इसको इस तरीके से दिखाना जो है काफ़ी एडवांटेजियस रहता है डायरेक्टली मेजरमेंट करने के लिए। तो मान लीजिए कि यहाँ पे कैल्शियम है, ठीक है। तो कैल्शियम हमारा कितना था, 2.75 था, ठीक। मैग्नीशियम 1.48 था, तो 2.75 प्लस 1.48 विच मीन्स इज इक्वल टू 4.23। एंड इस तरीके से इसमें टोटल इसको एक बार ग्राफ में शो कर लिया, एंड नीचे एनायंस को भी बार ग्राफ में हम लोगों ने शो कर लिया। तो इससे पता है कि ये जो डिफरेंस इतना आ रहा है, यही डिफरेंस है कैटायंस एंड एनायंस के बीच का, ठीक है। अब यहाँ से डायरेक्टली हम लोग हार्डनेस वगैरह को मेजर कर सकते हैं। हार्डनेस इससे यहीं से डायरेक्टली फाउंड आउट कर सकते हैं हम लोग। सीधे हमको इक्विवेलेंट कॉन्सेंट्रेशंस पता है, वो ग्राम इक्विवेलेंट्स पता है, इसको सीधे 50 से मल्टीप्लाई करके मिलीग्राम पर लीटर SiO3 में हम लोग हार्डनेस इससे डायरेक्टली फाउंड कर सकते हैं। लाइक अगर हमसे लोगों से कोई कैल्शियम हार्डनेस पूछता है तो 2.75 इंटू 50, और मैग्नीशियम हार्डनेस पूछता तो 1.48 इंटू 50 या 4.23 माइनस 2.75 इंटू 50 कर देते, तो कैल्शियम हार्डनेस मैग्नीशियम हार्डनेस पता जाता। कोई हमसे पूछता कि बाइकार्बोनेट एल्कलिनिटी कितना है, तो बाइकार्बोनेट एल्कलिनिटी कितना है 4.10 इंटू 40 एज अ CaCO3। तो ये डायरेक्टली बहुत इजी मेथड्स होता है। इसको एक बार बनने के बाद में इसको डायरेक्टली प्लॉट करने के बाद में एक अंडरस्टैंडिंग इससे बहुत इजीली बन जाती है। So after understanding the total dissolved solids, we have came on the second parameters of chemical water quality is the alkalinity. So alkalinity is the ability of water to neutralize acids. So how the ability of water neutralize the hydrogen ions in a water is called the alkalinity. So alkalinity is defined as the quantity of ions in a water that will react to neutralize the hydrogen ions. तो अब क्या होगा कि हाइड्रोजन आयंस जो ये कैटायन है, सो इसमें जो ये एल्कलिनिटी क्या है, एनायंस एल्कलिनिटी देंगे। सो व्हाट आर द डिफरेंट कॉमन एल्कलिनिटी एनायंस आर, so first one is the carbonate, so that is called the carbonate alkalinity, then the bicarbonate, then called the bicarbonate alkalinity, and then the hydroxyl, so that is called the caustic alkalinity. So these are basically the three kinds of alkalinity. There are some major, some minor sources of alkalinity also. So HSiO3 minus, then H2BO3 minus, HPO4 minus minus, then HS minus, ammonia, then H2PO4 minus. So these are the some minor sources of alkalinity also. So alkalinity of water होता किस वजह से, तो dissolved atmospheric carbon dioxide की वजह से होता है, like the H2O वो CO2 plus H2O is equals to H2CO3. यहाँ से जो atmospheric dissolution of carbonate होता है इसकी वजह से भी alkalinity होती है. Then जो यहाँ पे मिनरल्स रहेंगे, माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स रहेगा, उससे सबसे अल्कलिनिटी वाटर में आती है. सो कुछ रिएक्शंस हैं, इस रिएक्शंस के बेसिस के ऊपर हम लोग का पीएच डिपेंडेंसीज वगैरह सारा चलता है, उसको हम लोग एक बार मेजर करते हैं, देखते हैं. तो रिएक्शन क्या है, CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू H2CO3. फिर H2CO3 जो कार्बोनिक एसिड है, दिस इज कॉल्ड द कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड, so this is the carbonic acid. H2CO3 is the carbonic acid. Then carbonic acid dissociate होकर के H plus HCO3 minus देता है. So this one is the bicarbonate alkalinity. Then bicarbonate जो है वो फिर से वापस dissociate होकर के H plus carbonate दे करके HCO3 minus देता है, वो CO3 minus देता है, कार्बोनेट देता है. Then ये कार्बोनेट जो है वो वाटर से वापस से रिएक्ट करके बाइकार्बोनेट बनाता है और OH माइनस कास्टिक एल्कलिनिटी देता है. सो होगा क्या, जो ये लास्ट वाली रिएक्शन है, ये रिएक्शन एल्गी के प्रेजेंस में बहुत तेज से राइट साइड में शिफ्ट होती रहती है. उसका रीजन क्या है कि जो कार्बोनेट रहता है और H2O पे डिजॉल्व होता है, तो अगर एल्कलिनिटी वो प्रेजेंट है, सॉरी ये देयर इज अ एल्गी प्रेजेंट है, सो एल्गी क्या है, बाइकार्बोनेट को कंज्यूम करता रहता है. जब कंजम्पशन ऑफ बाइकार्बोनेट इज देयर, देन अगर कार्बोनेट की फुलफिलमेंट इधर से होती रही तो ये रिएक्शन हमेशा राइट वर्ड शिफ्ट में ही रहती है.
इस वजह से हम लोग कहते हैं कि जब एल्गी प्रेजेंट होता है इन वाटर में जब एल्गी प्रेजेंट होता है तो पीएच जो है हाईली अल्कलाइन की रेंज में रहता है, लाइक द 9 to 10 के आसपास पीएच रहता है ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ एल्गी इन अ वाटर। ठीक है, अब पीएच डिपेंडेंसी जो है उसको टाइट्रेशन कर्व वगैरह उसको कैसे समझते हैं देखते हैं। होता क्या है कि देयर इज जब हम लोग इसको टाइट्रेशन करते हैं एल्कलिनिटी या हार्डनेस निकालने के लिए, जब हम कोई भी टाइट्रेशन करते हैं तो टाइट्रेशन करने के लिए हम लोग बेसिकली 2 इंडिकेटर्स को यूज करते हैं। सो फर्स्ट वन इज अ फिनोप्थिलीन एंड सेकेंड वन इज अ मिथाइल ऑरेंज। फिनोप्थिलीन जो है दैट इज वो आपका जो है बेसिक इंडिकेटर है एंड मिथाइल ऑरेंज जो है एसिडिक इंडिकेटर है। ठीक है, तो फिनोप्थिलीन क्या है, बेसिक इंडिकेटर, और मिथाइल ऑरेंज जो है एसिडिक इंडिकेटर है। इसका तो पीएच टॉलरेंस रेंज क्या है, फिनोप्थिलीन की 8.3 से 10.6, यानी कि 10.6 के ऊपर कलर चेंज करेगा, 8.3 के ऊपर ये कलर चेंज करेगा। ठीक है, सो पीएच जब अगर 9 से ऊपर है इसका तो यहाँ पे जो कलर है ये पिंक रहेगा, और जैसे ही पीएच ड्रॉप डाउन होता होता 8.5 के आसपास या 8.3 पे पहुंचता है तो ये पिंक टू कलरलेस हो जाता है। ये इसकी इंडिकेटर प्रॉपर्टी है। देयर इज ऑल्सो एन एसिडिक इंडिकेटर दैट इज द मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का पीएच टॉलरेंस लिमिट क्या है, 2.8 से 4.3। अब क्या है, जब पीएच हमारा वापस से 8.3 से 4.5 की तरफ जब शिफ्ट होगा तो जैसे ही 4 इस रेंज में आने के बाद में मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर जो है वर्क करने लगेगा। तो जैसे ही पीएच हमारा 4.5 को टच करेगा तो जो कलर येलो था बेसिक मीडियम में मिथाइल ऑरेंज का, ठीक है, वो कलर चेंज होकर के रेड में हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक मीडियम से एसिडिक मीडियम में आने पे इसका कलर चेंज हुआ। किस पॉइंट पे चेंज होगा, नियरली 4.3 पीएच पर या 4.5 पीएच पे, तो ये इसकी पीएच टॉलरेंस लिमिट है। अब इसको देखते हैं टाइट्रेशन कर्व को। लाइक कि हम जब स्टार्ट करते हैं तो 10 पीएच से मान लो स्टार्ट किया, 10 पीएच से पीएच अगर ड्रॉप डाउन होता 8.3 तक आता है तो उस पॉइंट तक आते आते जो ये पूरा कॉस्टिक एल्कलिनिटी है ये कंज्यूम हो जाएगी, और कॉस्टिक एल्कलिनिटी H+ से मिलकर के H2O वाटर बना लेगी, कॉस्टिक एल्कलिनिटी कंज्यूम हो जाएगी। अब क्या है, जो कार्बोनेट प्रेजेंट है, ठीक है, वो हाफ ऑफ द जो कार्बोनेट प्रेजेंट है वो बाइकार्बोनेट में H+ को ले करके कार्बोनेट जो है H+ OH- से H2O बना लेगा। फर्स्ट रिएक्शन में ये 8.3 पीएच तक कंप्लीट हो जाएगी रिएक्शन। अब क्या है, जो ये कार्बोनेट प्रेजेंट है 8.3 पीएच से ऊपर, वो कार्बोनेट H+ से रिएक्ट करके HCO3- बनाएगा। अब क्या है, जो ये HCO3- है, दिस इज फर्दर रिक्वायर्ड H+ टू मेक द कार्बोनिक एसिड। दैट इज वाई वी आर थॉट ऑफ दैट half of the carbonate ion is half of the carbonate alkalinity is only consumed up till the 8.3 pH। सो उसके बाद क्या होगा कि 8.3 pH से 4.5 pH तक जब हम लोग आते हैं तो उस रेंज में आने पर पूरा का पूरा बाइकार्बोनेट अल्कलिनिटी जो है वो हो जाएगा। उसके बाद में ये हाफ ऑफ द कार्बोनेट अल्कलिनिटी प्लस बाइकार्बोनेट अल्कलिनिटी हमारी कंज्यूम होगी, और 4.5 पीएच के बाद में तुम्हारा टोटल जो है कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड कास्टिक अल्कलिनिटी तीनों ही कंज्यूम हो जाएगी। ठीक है, तो यही हमको लिखा है कि अप टू pH 8.3 CO3- कन्वर्टेड टू HCO3-, but HCO3- also required the acid, then only the half of the CO3- is supposed to be neutralized up to the pH 8.3. Then neutralization of OH- is fully complete up to pH 8.3. At pH 4.5 all the bicarbonates will have been converted to the carbonic acid. So amount of acid required to titrate a sample of pH to 4.5 is represented the total alkalinity of water, yeah, that is called the methyl orange alkalinity। ठीक है, 4.5 pH तक लाने के लिए जितना भी हमको एल्कलिनिटी प्रेजेंट होना चाहिए दैट इज कॉल्ड द टोटल एल्कलिनिटी ऑफ वाटर या मिथाइल ऑरेंज एल्कलिनिटी। अब ये कुछ एनालिटिकल रिजल्ट्स हैं, उसको हम लोग एक बार देखते हैं। होता क्या है, जब P हमारा M के बराबर है, विच मीन्स जब फिनोप्थिलीन एल्कलिनिटी मिथाइल ऑरेंज एल्कलिनिटी के इक्विवेलेंट है तो टोटल जो एल्कलिनिटी प्रेजेंट होगी वो हमारी कॉस्टिक एल्कलिनिटी होगी। ठीक है, यानी कि जो P तक क्या था, हमारा टोटल जो रिएक्ट कर रहा था वो कॉस्टिक एल्कलिनिटी थी। अब ये टोटल जो M है वो P के बराबर है, विच मीन्स द टोटल एल्कलिनिटी इज द कॉस्टिक एल्कलिनिटी। सो द नेक्स्ट स्टेप इज व्हेन द P इज इक्वल्स टू M/2, यानी कि फिनोप्थिलीन एल्कलिनिटी इज इक्विवेलेंट टू मिथाइल ऑरेंज एल्कलिनिटी by 2, यानी कि हाफ ऑफ द मिथाइल ऑरेंज एल्कलिनिटी। तो उस केस में क्या होगा,
ये दोनों एल्केलिनिटी OH माइनस प्लस हाफ ऑफ द CO3 माइनस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द CO3 माइनस प्लस HCO3 माइनस। ये कॉम्बिनेशन कब हो सकता है? जब OH माइनस एल्केलिनिटी जो है HCO3 माइनस के इक्विवेलेंट हो जाए। जब ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो जाएगी तो जो टोटल एल्केलिनिटी बचेगी दैट इज द कार्बोनेट एल्केलिनिटी व्हेन जब P इज इक्वल टू m/2। यही है हमारा, व्हेन P इज इक्वल टू m/2 तो जो एल्केलिनिटी होगी दैट इज द कार्बोनेट एल्केलिनिटी। थर्ड क्या है? व्हेन P इज लेस देन m/2। जब हमारा P लेस देन m/2 होगा तो जो एल्केलिनिटी प्रेजेंट होगी दैट इज कार्बोनेट एल्केलिनिटी प्लस बाइकार्बोनेट एल्केलिनिटी। होगा क्या? जब P इज लेस देन m/2 तो कार्बोनेट प्लस बाइकार्बोनेट इस रेंज में है और कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्सिल इस रेंज में है। तो P जो है अगर इससे कम होगा, मान लो इस पॉइंट पे कहीं P है, ठीक है, तो क्या होगा? मेजर पोर्शन क्या होगा? हाफ ऑफ द CO3 माइनस प्लस बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो बोलेंगे कि जब P लेस देन m/2 है, इस रेंज में अगर m है, m का हाफ कहीं ये है और P लेस देन m/2 है, तो एट दैट पॉइंट पे जो एल्केलिनिटी होगी वो कार्बोनेट एल्केलिनिटी प्लस बाइकार्बोनेट एल्केलिनिटी होगी। देन फोर्थ केस में क्या होगा? व्हेन P इज ग्रेटर देन m/2। जब P ग्रेटर देन m/2 है, मान लो m/2 यहां पे आता है, P ग्रेटर देन m/2 है, तो मेजर चंक क्या होगा? कार्बोनेट एल्केलिनिटी प्लस कॉस्टिक एल्केलिनिटी। तो इस केस में क्या है? जब P ग्रेटर देन m/2 है तो कॉस्टिक एल्केलिनिटी प्लस कार्बोनेट एल्केलिनिटी प्रेजेंट होगा। अब सबसे लास्ट पॉइंट क्या है? जब व्हेन P इज इक्वल टू 0 तो पूरी की पूरी एल्केलिनिटी जो है दैट इज द मिथाइल एल्केलिनिटी। तो विच मीन्स द टोटल एल्केलिनिटी इस पॉइंट पर जो है वो होगी दैट इज द बाइकार्बोनेट एल्केलिनिटी व्हेन P इज इक्वल टू 0। तो टोटल जो है वो M रहेगा, M जो है बाइकार्बोनेट एल्केलिनिटी को रिप्रेजेंट करेगा। हम लोगों ने इससे ये टाइट्रेशन कर्व से समझा, ठीक है। ये कर्व इस तरीके से डिक्रीज होता जाता है। ये pH पॉइंट्स हैं, ये किस किस पॉइंट पे क्या क्या है, वी हैव ऑल डिस्कस्ड हियर। ओके, देन ऑब्जेक्शंस क्या है? ऑब्जेक्शंस क्या है? एल्केलिनिटी जो है बिटर टेस्ट वगैरह देती है वाटर में, हार्डनेस वगैरह भी इसकी वजह से आता है। देन रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन द सर्टेन कैटायंस एंड एनायंस के बीच में रिएक्शन प्लेस करता है। एंड लास्ट में क्या है कि इसमें प्रेसिपिटेशन होने लगता है पाइप में। जब वाटर फ्लो करता है पाइप में तो प्रेसिपिटेशन होने लगता है। प्रेसिपिटेशन किस चीज का होगा? प्रेसिपिटेशन होगा हमारा CaCO3 का, CaCO कैल्शियम कार्बोनेट का होगा एंड MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट और MgCO3, ठीक है। और इसका दोनों का प्रेसिपिटेशन होने लगेगा। सॉरी, MgCO3 नहीं, दैट इज MgOH का होल ट्वाइस। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स बनने लगेंगे। दैट इज द, ये जो है एल्केलिनिटी की वजह से यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि पाइप्स में इंक्रस्टेशन वगैरह होने लगेगा, पाइप्स का डायमीटर जो है वो कम होने लगेगा, फ्लो जो है उसमें सरफेस से उसमें जब फ्लो होगा तो डायमीटर कम होने लगेगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी और लॉसेस वगैरह भी इंक्रीज होने लगेंगे। मेजरमेंट का प्रोसीजर क्या है कि जैसा हम लोगों को पहले भी बहुत बार दे चुका है कि ग्राम इक्विवेलेंट वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो 1000 ml जो है इसमें हम लोग जो टाइट्रेशन करते हैं वो N/50 H2SO4 के साथ टाइट्रेशन करते हैं या 0.02 N H2SO4 के साथ यहाँ पे टाइट्रेशन करते हैं। तो 1000 ml ऑफ H2SO4 0.02 N H2SO4 होगा, ठीक है। 1 ml जो है 0.02 N अपॉन 1000 H2SO4 बेसिक केमिस्ट्री है। So 1 ml of H2SO4 is equals to 0.02 upon 1000 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 होगा। अब क्या है, किसी भी चीज का ग्राम इक्विवेलेंट दूसरी चीज के ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होता है, तो यही 0.02 अपॉन 1000 ग्राम इक्विवेलेंट जो है CaCO3 के बराबर होगा ग्राम इक्विवेलेंट के। अब CaCO3 का इक्विवेलेंट वेट क्या है? 100/2 यानी 50। तो इसको जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज द 5, ये 50 इंटू 2 तो 1, तो दैट इज द 1 ml ऑफ H2SO4 N/50 जो नॉर्मेलिटी का रहेगा वो 1 मिलीग्राम ऑफ एल्कलिनिटी एक्सप्रेस्ड के बराबर होगा CaCO3। कैसे करते हैं? जब हम लोग मान लीजिए ब्यूरेट में टाइट्रेशन के वक्त में H2SO4 फिल करते हैं और एल्कलिनिटी को फाइंड आउट करने के लिए उसमें कोनिकल फ्लास्क में उसको स्टिर कर रहे होते हैं और इंडिकेटर डालते हैं। एट दैट पॉइंट पे जैसे ही हमारा जितने ml ऑफ H2SO4 कंज्यूम होगा उतने ही मिलीग्राम ऑफ CaCO3 एल्कलिनिटी प्रेजेंट होगी, ठीक है। ये कंसेप्ट है। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर। न्यूमेरिकल क्या है एक बार ढंग से समझेंगे।
अ 200 ml ऑफ सैंपल ऑफ वाटर है, इनिशियल pH 10 है, जो इनिशियल pH हमारा यहाँ पर 10 है, ठीक है। 30 ml of 0.02 N2SO4 is required to titrate the sample to pH 4.5, ठीक है। Then calculate the total alkalinity of 14 mg per liter SCaCO3. Also calculate the concentration of species of OH minus SCO3 minus CO3 minus, ठीक है। ये प्रेजेंट होगा इफ pH 8.3 रीच करता है, देन एट 11 ml ऑफ एसिड्स पर हमारा pH 8.3 अचीव करेगा। तो हमको ये सब फाइंड आउट करना है। सो 200 ml ऑफ सैंपल वाटर जो है इनिशियल pH 10 है, तो 30 ml ऑफ H2SO4 कंज्यूम हो रहा है। 200 ml में 30 ml कंज्यूम हो रहा है, तो 1000 ml में कितना होगा, बेसिकली 30 इंटू 5 दैट इज 150 ml, ठीक है। ये बेसिक जो है हमारा यूनिटरी मेथड से 30 इंटू 1000 अपॉन 200 30 इंटू 5 H2SO4 150 ml ऑफ 0.02 N2SO4 कंज्यूम हो रहा है। सो टोटल एल्कलिनिटी जो है ये 150 मिलीग्राम टोटल एल्कलिनिटी प्रेजेंट होगी, 150 मिलीग्राम यहाँ पे टोटल एल्कलिनिटी प्रेजेंट होगी एज CaCO3। अब जैसा देखा कि pH जो है इनिशियल pH 10 था, तो pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, तो pH 10 है तो POH कितना होगा 14 माइनस 10, तो 4 होगा POH। अब क्या है कि pH का क्या होता है, निगेटिव निगेटिव लॉग होता है, तो POH भी सेम रहता है, तो माइनस को लॉग बेस 10 OH माइनस इज इक्वल टू 4, तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी 10 टू द पावर माइनस 4 मोल पर लीटर। जो ये कॉन्सेंट्रेशन जो यहाँ पे होती है दैट इज इन अ मोल पर लीटर होती है, ठीक है। अब मोल पर लीटर को ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में कैसे चेंज करेंगे, 10 टू द पावर माइनस 4 मोल पर लीटर है। अब क्या है कि एक मोल ऑफ OH माइनस में कितने ग्राम ऑफ OH कितने ग्राम होगा, 17 ग्राम होगा, और एक ग्राम इक्विवेलेंट में 17 ग्राम यहां से भी होगा, तो इसको जब डिवाइड करेंगे 17 ग्राम इक्विवेलेंट ग्राम पर मोल, और ये जो है ग्राम पर ग्राम इक्विवेलेंट 17 ग्राम होगा पर ग्राम इक्विवेलेंट में OH माइनस के, तो डायरेक्टली OH माइनस का जो आएगा 10 टू दी पावर माइनस 4 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब CaCO3 में कन्वर्ट इसको कर देंगे एज CaCO3, तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 50 ग्राम्स होते हैं एक ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 के में, तो यहाँ से 5 मिलीग्राम पर लीटर एज CaCO3 आ जाएगी, हमारी कॉस्टिक एल्कलिनिटी है। टोटल एल्कलिनिटी कितनी होगी, OH माइनस प्लस SCO3 माइनस प्लस CO3। ये टोटल एल्कलिनिटी क्यों हुई, टोटल एल्कलिनिटी इसलिए हुई कि देखिए लिखा क्या है, 30 ml ऑफ 0.02 N2SO4 इज रिक्वायर्ड टू टाइट्रेट द सैंपल टू pH 4.5। अब pH 4.5 तक आने पर जो एल्कलिनिटी थी यहाँ पे मिल रही थी दैट इज द टोटल एल्कलिनिटी इस पॉइंट पे मिल रही थी, तो इसलिए जो टोटल एल्कलिनिटी होगी वही 30 इंटू 5 इज इक्वल टू 150 मिलीग्राम पर लीटर SCaCO3 होगी। अब कार्बोनेट एल्कलिनिटी निकालना है हमको, ठीक है। सो कार्बोनेट एल्कलिनिटी कैसे निकलेगी, कार्बोनेट एल्कलिनिटी निकालने के लिए बेसिकली जो 11 ml ऑफ H2SO4 विल हैव कंज्यूम टू रिड्यूस द pH ऑफ वाटर टू 8.3 फॉर 200 सैंपल। अब क्या है, जैसा कि हमने टाइट्रेशन कर्व में बताया था कि 8.3 pH आते आते OH माइनस पूरा कंज्यूम हो जाता है और हाफ ऑफ द CO3 माइनस कंज्यूम होता है। सो 11 ml N/50 H2SO4 है, तो इसको जो 200 ml के लिए है, तो दिस हैव बीन कन्वर्टेड टू 5 टाइम्स दैट 1000/200, तो 11 इंटू 5 दैट से 55 मिलीग्राम पर लीटर यहाँ से आ जाएगा। सो अगर हम लोग इसको डायरेक्टली कैलकुलेट करें, OH माइनस एल्कलिनिटी हमको मिल चुकी है 5 मिलीग्राम पर लीटर, तो 55 माइनस 5 दैट इज द 50 मिलीग्राम पर लीटर CaCO3। तो कार्बोनेट एल्कलिनिटी जो है दैट इज इक्वल टू 50 इंटू 2 दैट इज द 100 मिलीग्राम पर लीटर कार्बोनेट एल्कलिनिटी यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। सो दिस हैज बीन कैलकुलेटेड दैट द कास्टिक एल्कलिनिटी एंड कार्बोनेट एल्कलिनिटी बेसिक मेथड से। अब बाइकार्बोनेट एल्कलिनिटी कैसे पता चलेगा, तो बेसिकली हम लोग इसमें से माइनस कर लेंगे। टोटल एल्कलिनिटी हमारी 150 मिलीग्राम पर लीटर है, उसमें से कार्बोनेट प्लस कास्टिक अगर रिमूव कर दें देन हमको बाइकार्बोनेट मिल जाएगी। तो टोटल हमारी कितनी थी, दैट इज 150 मिलीग्राम पर लीटर and caustic alkalinity 5 milligram per liter and carbonate alkalinity is equal to 100 milligram per liter as CaCO3. So bicarbonate alkalinity will be 45 milligram per liter as CaCO3 हमारी bicarbonate alkalinity हो जाएगी। So इस क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करना था we have also find out all these things in a question. Then question 2 देखिए क्या है,
इफ अ वाटर कंटेन्स 230 ग्राम ऑफ कार्बोनेट आयंस, ठीक, एंड 77 ग्राम्स ऑफ बाइकार्बोनेट आयन एंड 93 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, देन कैलकुलेट द अल्कलिनिटी ऑफ वाटर एज CaCO3। वही ग्राम इक्विवेलेंट का कंसेप्ट लगा करके हम लोग इसके सबके ग्राम इक्विवेलेंट पहले निकाल लेते हैं। कार्बोनेट का 230 ग्राम दे रखा है, ग्राम वो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है 60, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का कितना है 16, तो 16 into 3 is equal to 48 plus 12, that is 60 divided by 2, that is the equivalent weight। तो equivalent grams upon gram equivalent, gram upon equivalent weight is equals to ग्राम इक्विवेलेंट, तो 7.667 ग्राम इक्विवेलेंट्स आ गया है, ठीक। दैट इज द कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट भी सेम है 77/61, ठीक है, ये 60 + 1 is 61, 1 इसकी वैलेंसी है, तो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज द 1.262 ग्राम इक्विवेलेंट। हाइड्रोक्सिल का भी 17/1 93 है, 5.4705 ग्राम इक्विवेलेंट्स आ गए। नाउ टोटल एल्कलिनिटी ऑफ वाटर कैसे निकलेगा, 7.667 प्लस 1.262 प्लस 5.4705, ये टोटल ग्राम इक्विवेलेंट्स है। कैल्शियम कार्बोनेट के 1 ग्राम इक्विवेलेंट में 50 ग्राम्स होते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 50 ग्राम्स पर ग्राम इक्विवेलेंट से, सो 14.40 ये सम है इसका इंटू 50, दैट इज द टोटल एल्कलिनिटी इज इक्वल टू 720 ग्राम्स एज CaCO3 इक्विवेलेंट, ठीक है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन हैज आल्सो कंप्लीटेड। Thank you very much. In today's lecture, we have talked about the chemical parameters. 2 chemical parameters we have covered. First one is a suspended or total dissolved solids and alkalinity present. And we have done also the 2-3 questions. First one question is on the ion balance. ठीक है. Then we have done question on alkalinity, 2 questions. So thank you very much. If you wanna like my if you like my videos and my lectures, then kindly subscribe, like and share. And if you want to know the current latest updates of my videos, then just push the bell icon is there. Thank you very much.